Good morning, dear students. So, like you know, we have started the topic physical features of India. And in this topic, we have covered two physical features of India. First one was Himalayan mountains, and the second one was northern plain of India. So, now this is the time to move on to the next physical feature of India, and that is the Great Indian Desert. मरुस्थल के बारे में हम पढ़ने वाले हैं भारत के. So, before that, let me tell you the definition of desert. Desert होता क्या है? This is a large land which has very little water and very few plants growing there. एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पर बहुत कम पानी होता है, वहाँ पर वेजिटेशन वनस्पति जो है बहुत कम पाई जाती है. So basically two type of deserts we have in the world. One is hot desert and the other one is cold desert. So what are the difference between hot and cold deserts? Hot deserts, they are found in the tropical areas, and cold deserts, they are found in temperate and polar regions. So like we can see on the earth, in the middle we have equator, then on the north or in the northern side of equator we have Tropic of Cancer, and in the southern side we have Tropic of Capricorn. So the area between these tropics is called tropical area. Hot deserts are found here. Then we have this area is called the temperate zone, and downside this area is also called temperate zone. Then we have polar region or the frigid zone. So three heat zones we have. First one is tropical, then we have temperate, and then we have frigid or the polar region you can say. So two type of deserts we have, one is hot desert and the other is cold deserts. So in India also we have both the deserts, cold as well as hot. So in India we have cold desert in Ladakh. Ladakh is the cold desert found in India, and the other hot desert that is called the Thar desert or the Great Indian Deserts. So in this video we will talk about only this part, the Great Indian Desert or the Thar desert. So let me tell you some important points about Thar desert or the Great Indian Desert. It lies in the northwestern part of India, northwestern part में है इंडिया के, and it has the area of 2 lakh square kilometer. 2 lakh square kilometer का इसका एरिया है. 85% of the area of the desert it lies in India, and remaining 15% it lies in Pakistan, and it forms a natural boundary between India and Pakistan. भारत और पाकिस्तान के बीच में एक नेचुरल बाउंड्री फॉर्म करता है ये, and this is the 17th largest desert in the world. वर्ल्ड में 17th नंबर पे इसका आता है. हॉट डेजर्ट और कोल्ड डेजर्ट दोनों को मिला के यदि हम लिस्ट एक काउंट करें तो उसमें इसका 17th रैंक आता है. सो नाउ क्वेश्चन अराइजेस, व्हिच इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड? सो दिस इज द कोल्ड डेजर्ट. इफ यू सी ऑन द मैप ऑफ वर्ल्ड, डाउन साइड वी हैव एंटार्क्टिका. दिस इज द लार्जेस्ट डेजर्ट फाउंड इन द वर्ल्ड. देन वी हैव ऑन द अपर साइड ऑफ द मैप ऑफ द वर्ल्ड आर्कटिक. Then we have Sahara Desert which is found in African continent. अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में पाया जाता है, and this is a hot desert. So इस तरह से एक लिस्ट बना ली जाए. So सबसे पहले हमारे पास एंटार्क्टिका है, and then the 17th rank it is of Thar Desert of India. तो 17th रैंक पे हमारा आता है. उसके बाद यदि हम वन बाय वन इसकी कुछ फीचर्स के बारे में पढ़ना शुरू करें कि देखिए वर्ल्ड में जो जितने भी मोस्टली जो डेजर्ट्स हैं वो वेस्टर्न पार्ट में पाए जाते हैं. हॉट डेजर्ट्स की यदि बात की जाए वेस्टर्न पार्ट में क्यों है? देखिए इंडिया का ये वेस्टर्न पार्ट में है. ऐसा क्यों है? अफ्रीका में भी जो है हमारा सहारा डेजर्ट है, नामीबियन डेजर्ट है, वो भी वेस्टर्न पार्ट में पाए जाते हैं मोस्टली. ऐसा क्यों है? क्योंकि जो हमारी मानसून विंड्स होती हैं वो यहाँ तक जो जाते जाते उनके मॉइस्चर्स जो है खत्म हो चुके होते हैं. मॉइस्चर जो है बहुत ज़्यादा कम अमाउंट उनमें रह जाता है, और इस साइड से जो जाती हैं हमारी मानसून की जो विंड्स होती हैं उनके पैरेलल होकर गुजर जाती हैं, पैरेलल से निकल जाती है. यहाँ तक जो है रेनफॉल बहुत ही कम पहुँच पाता है. सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट सम बेसिक फीचर्स ऑफ ग्रेट इंडियन डेजर्ट. सो द टॉपिक इज द ग्रेट इंडियन डेजर्ट. इट इज ऑल्सो नोन एज थार डेजर्ट. थार डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, इट्स अदर नेम इज व्हाट? सो दिस इज थार डेजर्ट. इट लाइज टू द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ अरावली हिल्स. मैप पे आप देख सकते हैं यहाँ पर अरावली हिल्स हैं. इसके वेस्टर्न मार्जिन पे जो है हमारा थार डेजर्ट है. वेस्टर्न पार्ट जो हमारा है अरावली हिल्स का ये एरिड एरिया है, सूखा एरिया है, और जो ईस्टर्न पार्ट है वो सेमी एरिड है, यानी कि अर्ध शुष्क एरिया हमारा है. एन अंडुलेटिंग सैंडी प्लेन. अंडुलेटिंग है, समतल नहीं है, ऊंचा नीचा है. सैंडी प्लेन है, कवर्ड विद सैंड ड्यून्स. सैंड ड्यून से ढका हुआ है. सैंड ड्यून्स क्या होते हैं? रेत के टीले. जब हवा अपने साथ जो है रेत को बहा कर ले जाके एक जगह पे कहीं डिपॉजिट कर देती है, दैट इज कॉल्ड सैंड ड्यून, यानी कि रेत के टीले बने होते हैं.
इट रिसीव्स रेनफॉल बिलो 150 mm। यहाँ पर जो रेनफॉल होती है वो 150 mm से कम होती है, और यू कैन से 15 सेंटीमीटर से कम होती है। एनुअल की बात हम कर रहे हैं, एनुअल रेनफॉल। स्ट्रीम्स अपीयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन। यहाँ पर जो स्ट्रीम्स हैं, छोटी छोटी जो हमारी नहरें वगैरह होती हैं, वो सिर्फ रेनी सीजन में ही होती हैं। इंडिया में रेनी सीजन कब होता है? जून टू सितंबर होता है। उस टाइम पे जब थोड़ा बहुत रेनफॉल यहाँ पहुँच जाता है, उस टाइम पे स्ट्रीम्स दिखाई देती हैं। एंड सून आफ्टर, वेरी सून दे डिसअपियर। इसके बाद जल्दी ही वो जो है डिसअपियर हो जाती हैं, बिकॉज दे डोंट हैव मच वाटर टू रीच टू द लार्जर वाटर बॉडी और टू रीच टू द सी। समुद्र तक पहुंचने के लिए उनके पास पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं होता है। लाइक यू कैन सी, नर्मदा एंड तापी बोथ रिवर दे फॉल्स इनटू अरेबियन सी हियर, एंड फ्रॉम हियर कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, महानदी, they all falls into Bay of Bengal because they have abundance of water to reach the larger water body। परंतु यहाँ पर जो रिवर्स पाई जाती हैं राजस्थान वाले पार्ट में, वहाँ पर उनके पास ज़्यादा वाटर नहीं होता है, इसलिए क्या होता है, वो सी तक नहीं पहुँच पाती हैं। लूनी इज द ओनली रिवर इन दिस रीजन। यहाँ पर जो एक मेजर रिवर पाई जाती है, दैट इज ओनली लूनी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। लाइक यू कैन बी आस्क्ड विच इज द ओनली रिवर फाउंड इन द डेजर्ट रीजन, दैट इज ओनली लूनी। ये हमारा अरावली हिल्स के इन वाले पार्ट से जो है ओरिजिनेट होती है। एंड बारखन क्रिसेंट शेप ड्यून्स आर फाउंड देयर। तो देखिए दो तरह की वहाँ पर मेजर लैंडफॉर्म्स बनते हैं। फर्स्ट वन वाज सैंड ड्यून एंड द अदर वन वाज बारखन। तो बारखन्स हमारे क्या होते हैं? बारखन्स देखिए कैसे, जैसे विंड्स चल रही होती हैं, अपने साथ जो सैंड को जो आगे भाग कर ले जाती हैं, या फिर यहाँ पर जो सैंड बना हुआ है, जो सैंड का एक टीला हमारा बना हुआ है, उसको क्या करता हूँ, एक साइड से काटना शुरू कर देती हैं, विंडवर्ड साइड से, हवा की साइड जो आती है। तो यहाँ पर एक ऐसी शेप बनना शुरू हो जाती है जहाँ से वो कटना शुरू हो जाता है रेत। क्रिसेंट का मतलब होता है हाफ मून, कटे हुए चांद की तरह एक शेप बनना शुरू हो जाती है, और इस साइड से जो है पूरा रेत जो है एक ऐसे शेप में आ जाता है, आर्क की शेप में बन जाता है। सो विच आर द एनिमल्स फाउंड देयर इन दैट रीजन? कैमल, शीप, गोट, चिंकारा, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और ब्लैक बक आर द मेन एनिमल्स फाउंड देयर। कैमल यू नो वेरी वेल, दिस इज कॉल्ड द शिप ऑफ इंडियन डेजर्ट। मरुस्थल का इसको जो है, भारतीय मरुस्थल का इसको समुद्री जहाज कहा जाता है, बिकॉज दिस इज मोस्टली यूज फॉर द ट्रांसपोर्टेशन देयर। सो इट हैज़ एरिड क्लाइमेट विद लो वेजिटेशन। अगर हम वेजिटेशन के बारे में यहाँ पर बात करें, यहाँ का जो क्लाइमेट है एरिड है, शुष्क है, और इसलिए यहाँ पर बहुत कम वेजिटेशन पाई जाती है। किस किस तरह के यहाँ पर जो है प्लांट्स पाए जाते हैं? कीकर, बबूल, खैर, डेट पाम एटसेट्रा, कैक्टस यू कैन से। सो सम मेन रिक्वायरमेंट्स आर देयर फॉर दीज प्लांट्स टू ग्रो देयर। इनको कुछ ज्योग्राफिकल कंडीशंस की जरूरत होती है कि कब वो वहाँ पर सर्वाइव कर पाएंगे। विच आर दीज मेन पॉइंट्स? दे हैव लॉन्ग रूट्स पेनिट्रेटिंग डीप इनटू द सोइल। इनकी जो जड़ें होती हैं बहुत ही ज़्यादा लंबी होती हैं, और मिट्टी के अंदर बहुत गहरे जहाँ गए हुए होते हैं नीचे की तरफ, टू गेट मॉइस्चर, ताकि वहाँ पर जो सैंड के अंदर, सोइल के अंदर मॉइस्चर है, उसको वो जो है एब्जॉर्ब कर सकें। द स्टेम्स आर सक्यूलेंट। इन प्लांट्स के जो स्टेम होते हैं, तना होता है, वो सक्यूलेंट होता है। सक्यूलेंट मीन्स दैट कैन एब्जॉर्ब, जो कि पानी को एब्जॉर्ब अपने अंदर कर सके, सोख सके। लीव्स आर मोस्टली थिक, लाइक यू हैव सीन कैक्टस। कैक्टस के जो लीव्स होते हैं बड़े थिक होते हैं और वैक्सी होते हैं। क्यों? ताकि इसमें से जो वाटर है वो कम से कम इवेपोरेट हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा बाहर ना पहुंच पाए, भाप बन के ना जा पाए, तो इवेपोरेशन बहुत कम होती है। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल लिविंग देयर, दैट इज़ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। वहाँ पर रहने वाले लोगों का जो मुख्य व्यवसाय है वो क्या है? एग्रीकल्चर है और एनिमल हस्बेंड्री है, इनके पशुपालन है। सो आपसे मेजर यहाँ पर जो 3 टॉपिक्स कवर हो सकते हैं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द ग्रेट इंडियन डेजर्ट और द थार डेजर्ट। देन यू कैन बी आस्क्ड अबाउट द एनिमल्स फाउंड देयर। देन यू कैन बी आस्क्ड अबाउट द plants or fauna or flora, both can be covered there, and downside we can be asked about the occupation of the people living there. But let me put you some more questions towards the end. So how much area does it cover? You have to tell in the kilometers. This is 2 lakh square kilometer. Then you can be asked how much % of the total area of the desert lies in India and how much % of the total area lies in Pakistan. सो देखिए राजस्थान के साथ साथ हमने पढ़ा है कि और भी कुछ स्टेट्स जैसे हरियाणा है, पंजाब है, हरियाणा, पंजाब और गुजरात के साथ भी थोड़ा जो है टच करता है। यहाँ पर भी आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ग्रेट इंडियन डेजर्ट का जो है दूसरा नाम क्या है? थार डेजर्ट्स के नाम से इसको जो है बुलाया जा सकता है। व्हाट इज द रैंक ऑफ थार डेजर्ट अमंग ऑल द डेजर्ट्स फाउंड इन वर्ल्ड? उसमें इसका रैंक कौन सा है? सो दीज आर द मेन पॉइंट्स अबाउट दिस फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया. सो दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक इन दिस वीडियो. थैंक यू वेरी मच.